meters above sea level. And here it takes U-turn and it passes through a deep gorge. That gorge is known as Dihang gorge. That here it is called Dihang Valley, and in this portion in Arunachal Pradesh it is called Dihang River. And when through this Dihang it enters Indian territory in Assam. Here it is joined by Lothal and Dibang rivers. There are two tributaries which join Brahmaputra in the Assam. One is Lothal and this Dibang. These Dibang and Lothal, these two rivers and some other tributaries, also small tributaries, they join the this main river, Brahmaputra, which is known as Brahmaputra in India, and through Assam it flows here, and here it takes southward direction. This is the white portion, this area, it is Bangladesh, our neighboring country, Bangladesh. So it enters Bangladesh and here and falls into Bay of Bengal. The length of this river is 2,910 kilometers. This river is slightly longer than the Indus. My dear students, in most of the books I have seen that the length of these rivers has been shown equal 2,900, but I have consulted so many books. I found there that the river Brahmaputra is slightly longer than Indus. So this river, one more thing, my dear students, you must remember it, that the river Brahmaputra is called Jamna in Bangladesh. When it enters Bangladesh, the people of Bangladesh call it Jamna, and this was the river Brahmaputra. These are three rivers which have their source across Himalaya. Number one is Indus, Satluj and Brahmaputra. These are three rivers which have their source across Himalaya, but through gorges they flow and they enter India and passes through and move in different directions. Then where I am going to show you the Ganga river system. The Ganga river system is the large Indus water system in India, where we see the Ganga. The Ganga has its origins from the Gangotri glacier in the Himalayas. The Ganga river has its origin in Gangotri glacier Himalayas, and near Hardwar it enters in the plains. Here it crosses Uttarakhand and enters UP here, and this river passes through Lucknow, Kanpur, Agra, and here this mighty river, and it enters Bihar. First of all, I will tell you that the river Ganga, the length of river Ganga is 2,525 kilometers, 25 kilometers. Accurate इसकी जो length है, and this is the mighty river of India, and it is the sacred river of India as per the Hindu religion. They treat it the sacred river, and this river is joined by the numerous tributaries. One of which is south tributaries is this parallel which flows parallel to it, that is the river Yamuna. River Yamuna has its origin in Yamunotri glacier in Himalayas here, and it passes through Uttarakhand, enters Delhi, and then it goes via Agra and Aligarh, and then it passes here this river Yamuna, and it joins river Ganga at Allahabad. Allahabad is a place in UP where the
this long tributary Yamuna joins Ganga at Allahabad. The length of the river Yamuna is 1376 kilometers. The length of the river is 1376 kilometers here. It means Allahabad, and it here passes enters Bihar and at Patna. Patna is the capital of Bihar. Here it is the Ganga. This main river is joined by the Ghagra, which has the source is the Himalayan river, Ghagra. Then the one more Gandak, which is the source in the near the Mount Everest in the Nepal Himalayas. The source it passes and enters Gandak through Bihar and it meets Ganga at Patna, and further when the river flows here, and here one more river is Kosi, very important river, which has its source in the Himalayas, in the Nepal Himalayas, and this river flows and it also meets at Bhagalpur in Bihar, meets with river Ganga, and this river Ganga flows here. When this river is here Farka near West Bengal, where this river here is Rajmal hills are there. So this river is divided into two branches. One branch of it goes to the Bangladesh here, the main branch, and meets river Brahmaputra at Dhaka. Then further here it is known as Meghna, and the ultimately it falls in Bay of Bengal. The river Ganga here near Faraka, it is divided by into two parts, two branches. The main branch of this river enters Bangladesh, and in Bangladesh it is called Padma. The branch of the river, the main branch of the river Ganga, when it enters Bangladesh, here it is known as Padma, and it joins river Ganga. Ganga joins with river Brahmaputra at Dhaka, which is the capital of Bangladesh here, and from Dhaka this mighty river, jointly this river flows further, moves further, and it is known as here Meghna. Here it is known as Meghna, and finally it falls into Bay of Bengal. So here these are the northern tributaries. Ghagra, Gandak and Kosi are the northern tributaries. Kosi is known as the sorrow of Bihar because it brings devastation to the life and property of the people of the Bihar. So that is why, because the heavy floods. Here from southern it has Chambal, Sindh, Betwa and Kind rivers, and soon these rivers are the central rivers, and these rivers are the southern tributaries Ganga. They move towards the north and join main Ganga, and this river flows further. This was the Ganga river system, which is the Ganga river system is the most important river system, and it drains an area of 7 lakh square kilometers, and it makes India, the plain, northern plain, the most fertile plain of the world. It supports a variety of crops. That is, it is good for growing different types of crops like rice, wheat, jawar, baja, sugarcane. New crops are grown in this area. That is why, because of the plenty of water, because of the fertile land, fertile soil, because of the level land, the northern plains are known as the food bowl of India. It's because of these rivers, because they bring sediments, sand, mud, and they have been deposited here from the thousands of years here, and these rivers have also on the Ganga, on the banks of the Ganga, there are 20 towns which are close to the which has been situated on the Ganga river, and this river brings happiness to the farmers because of the plenty of the water, and this is the Ganga river system. My dear students, time is over.
and I'll tell you in other topic I will discuss about the peninsular rivers later on. I have told you about the Ganga river system. The Ganga river system is the main river system, and this river system provides food security to the Indian farmers. Thank you very much. I thank you, sir. This is the now next I will tell you about the southern rivers. My dear students, you might have understand that in India we have two river systems. The land features of the land features have been divided, controls the river system of an area, and I already told you that when we tell about a drainage system, and that is all. Thank you, sir. रुत रुत सोरुई पजे रुत रुत सोरुई पजे कनन बोझुं अच्छन बुरा भला सब अयां हो जाएगा, न कान सुन पाएंगे न आंख देख सकेगी। उधर की आवाज जब दिल से उभरेगी तो बातिन का चराग तूफान में भी रोशन होगा। Welcome students, I am your friend Sheikh Bashir, and today I am again with a topic from class 9th subject mathematics, lines and angles. उसका जो टॉपिक है उसमें हमने जो कुछ पहले सीखा है, तो अब हम और जो कंसेप्ट रह गए थे उनके बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो अभी हमने इससे पहले क्या सीखा था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल जो है उसमें जो एंगल सम है, एंगल सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल्स, वो किसके बराबर है और इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जो विच आर द बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, विच आर द बेस्ड ऑन द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे और एक है प्रॉब्लम है जिसको मैं कंसिडर यहाँ पे हम कर रहे हैं और जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये जो फिगर बनी हुई है ये टू ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल्स यहाँ पे PRT एंड STQ, दीज आर टू ट्रायंगल्स। तो कुछ एंगल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमने क्या करना है, ये वाला एंगल जो है एंगल Q है यानी SQT, इसको हमने फाइंड करना है
ये एंगल Q जो है इसको हमने देखना है इसका मेजर क्या है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे यही प्रॉपर्टी जो एंगल सम प्रॉपर्टी हमने सीखी है उसको इस्तेमाल करके हम इस एंगल Q जो एंगल SQT है उसका मेजर निकाल सकते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फिलहाल मैं यहाँ पे रफली यही शेप ड्रा कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर बाद में। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसको यहाँ पे ड्रा कर रहा हूं तो नाम दे रहा हूं यहाँ पे PR, यहाँ पे नंबर P है और दिस इज R, दिस इज T, और यहाँ पे जो दूसरा है S एंड Q। तो यहाँ पे जो है ये 40 डिग्री इसका मेजर दिया गया है मेजरमेंट, और इसका जो मेजरमेंट है ये 95 डिग्री के बराबर है, और जो दूसरा नेक्स्ट है 75 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। तो ये वाला जो एंगल है ये हमने फाइंड करना है ये किसके बराबर है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो दो एंगल्स बचे हैं इसको हम नाम एंगल 1 देते हैं, इसको हम नाम एंगल 2 देते हैं। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल को, इसलिए क्या हम लिखेंगे सिंपली सोल्यूशन, हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, जैसे ऐसे सोल्यूशन हम लिखेंगे। अब जानते हैं ये दोनों ट्रायंगल जो है PRT और TSQ, ये दोनों ट्रायंगल्स का जो इंटीरियर एंगल सम है वो 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि जो हमने प्रूव किया है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसका जो इंटीरियर एंगल सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर है। हम यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे सपोज 40 प्लस 95, नहीं इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम और एक चीज करेंगे, इससे पहले हम यहां पे और एक चीज करेंगे। आप देखेंगे यहां पे बिल्कुल हाँ ऐसे ही करेंगे हम 40 प्लस 95 प्लस एंगल 2, ये किससे बराबर है 180 डिग्री के बराबर है। ये मैं क्यों कर रहा हूं, अगर मैंने सिर्फ ये एंगल Q निकालना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां मेरा क्या काम है, बिल्कुल आप पहले इसको सोचिएगा, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल जो है TSQ, इसमें दो एंगल्स अननोन है इस वक्त। एक तो ये Q एंगल है जो हमने फाइंड करना है, दूसरा ये वाला एंगल जिसको हमने एंगल 1 नाम दिया है। तो एक साथ हम अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल्स आपने फाइंड करने हैं, वो आप एक साथ एक ही बारे में नहीं निकाल सकते हैं। जब तक ना आपके पास दो एंगल्स नोन है एक ट्रायंगल में, तब तक आप एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से तीसरा एंगल नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए ये लाजमी बनता है हमारे लिए कि पहले हम एंगल 2, अगर हमें पता चले एंगल 2 और एंगल 1 जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, क्योंकि आपने पढ़ा है जब when two lines intersect at a point they form vertically opposite angles। तो यहां पर अगर आप देखेंगे PQ and RS, these are the two lines which intersect at the point T, and angle 1 and 2 are the vertically opposite angles। so यहां से हमें पता चलेगा, इस ट्रायंगल से हमें पता चलेगा what is the measure of angle 2, इसीलिए मैं यहां पे कर रहा हूं। तो यहां पे आप इसको देखेंगे 40 प्लस 95, सो इट इज 135 प्लस एंगल 2, तो आप लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो अगर आपने फिर आगे करना होगा एंगल 2 जो हुआ आपका विच इज 180 माइनस 135, तो दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू 180 में से आप 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 5 इज 5, तो 7 माइनस 3 इज 4, दिस 45। तो नाउ आपके पास एंगल 2 जो है वो 45 है। तो एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है, इसका मतलब है एंगल 1 भी 45 के बराबर है। तो आप इस ऐसे लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 45। तो अब हमारे पास जो एंगल 1 है ये 45 डिग्री के बराबर है। अब ये जो ट्रायंगल है TSQ, इसमें अब दो एंगल्स नॉन है और एक ही अननोन है। अब हम दोबारा से एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे और इन एंगल्स को हम फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं अगेन, दोबारा हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल S, हम लिख सकते हैं यहां पे एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो एंगल 1 आपको पता है वो किसके बराबर आया है, 45 डिग्री। तो हम यहां पे लिखेंगे इट इज 45 प्लस एंगल S जो है इसका मेजर ऑलरेडी दिया गया है 75, तो 75 प्लस एंगल Q विच इज अननोन विच वी हैव टू नो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दो का हम ऐड करेंगे यहां पे, 5 and 5 इज 10, 7 4 11 12 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे एंगल Q जो आपका है विच इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो व्हेन यू कैलकुलेट यू विल गेट 60। तो इस तरीके से एंगल Q जो है वो इसका वैल्यू जो आया है वो 60 डिग्री आया है। तो दिस इज वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ एंगल Q विद द हेल्प ऑफ द
applicate with the help of the property angle sum property of a triangle। तो अब हम क्या करते हैं और आगे चलते हैं, और एक एप्लीकेशन यहां पे है एंगल, जो एप्लीकेशन ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी है और एक एप्लीकेशन यहां पे है, और बिल्कुल ये वही एग्जांपल्स है, वही प्रॉब्लम्स है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। वहां पे बहुत सारे हैं, कुछ यहां पे हम कोशिश करेंगे इनको सॉल्व करने की, जो बाकी रह जाते हैं उनको आप खुद सॉल्व करेंगे वहां पे। तो यहां पे जो दूसरी प्रॉब्लम है थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। आप 2 मिनट आप ध्यान रखिए, आप इसको आराम से कर सकते हैं। यहां पे अगर आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे आप देखेंगे ये जो 2 ट्रायंगल्स है, ये 2 वाली ट्रायंगल्स, इनकी जो बेस है सेम है। यहां पे जो एंगल 1, यहां पे 2, 3, ये जो है ये एंगल, ये जो QT है, इट इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q। तो इसी तरीके से यहां पे आप देखेंगे TR इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस वेरी एक्सटीरियर एंगल। तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है ये जो ये वाला एंगल है जिसको हमने एंगल 7 नाम दिया है, या एंगल 1 यहां पे है, एंगल 7 इज हाफ ऑफ द एंगल 1, यानी ये जो एंगल 1 है, एंगल 7 जो है वो हाफ ऑफ द एंगल 1 के बराबर है। ये चीज हमने प्रूव करना है। तो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे, जिस तरीके से जो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी है यही हम इस्तेमाल करेंगे और इसी तरीके से हम प्रूव करेंगे। लेकिन मैं यहां पे क्या करूंगा, थोड़ी सी आप यहां पे एक रफली एक फिगर ड्रा कर रहा हूं ताकि कोई परेशानी नहीं होगी आपको इसमें समझने में। तो यहां से क्या करें, यहां से एक एंगल बाइसेक्टर हम ड्रा कर रहे हैं और यहां से और एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं जो मीट हो रहे हैं यहां पे। तो इसको आप नोट कीजिएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, और ये वाला एंगल जो ये इसके बराबर है। तो यहां पे जो नाम है इट इज P लिखा है यहां पे, इसलिए हम वही नाम लिख रहे हैं, PQ, एंड दिस इज R, PQR, दिस इज T एंड दिस इज हेयर S। तो हम यहां पे लिख सकते हैं S, इसको हम S भी लिख सकते हैं यहां पे। तो चलिए हमने क्या प्रूव करना है अब, इसलिए हम थोड़ा आसान करने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए हम इन एंगल्स का नाम दे रहे हैं। जैसे यहां पे मैं इसका नाम दे रहा हूं एंगल 1, और इसका नाम दे रहा हूं एंगल 2, इसका नाम दे रहा हूं एंगल 3, इसी तरीके से एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, और इसका नाम दे रहा हूं एंगल 7। तो हमने क्या प्रूव करना है, एंगल 7 जो है इट इज हाफ ऑफ एंगल 1, यानी इसका हाफ है। तो कैसे करेंगे हम प्रूफ, देखिए सर इसका प्रूफ, क्योंकि ये अभी हमने प्रूव करना है, इसको हम प्रूफ लिखेंगे, यहां पे प्रूफ लिखेंगे। हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 एक ही एंगल है जो Q है, एंगल Q है, प्लस एंगल 4, दीज आर द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल PQR, ये 180 डिग्री के बराबर है। और यहां पर ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल QTR, अगर इसके एंगल्स का भी हम सम करेंगे वो भी 180 डिग्री के बराबर होगा। इसलिए क्या हम लिखेंगे, हम लिखेंगे इज इक्वल टू एंगल 3, इसका जो पहला एंगल, ये एंगल 3 यहां से स्टार्ट हम कर रहे हैं, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7, ये बराबर आपस में, क्योंकि इसका जो सम है इन 3 का, ये यहां पे 4 है लेकिन एक को डिवाइड हमने किया करके रखा है, ये 2 हिस्सों में बट गया है। इसका जो सम है ये भी 180 डिग्री है और इसका भी सम है ये भी 180 डिग्री के बराबर है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में बराबर है। अगर आप देखेंगे यहां पर भी आपको एंगल 3 मिल रहा है, यहां पर भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहां पर भी आपके पास एंगल 4 है, यहां पर भी एंगल 4 है आपके पास, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 7, ये हमारे पास बचा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, हमने रिलेशन ढूंढनी है एंगल 1 और 7 के दरमियान, यानी एंगल 2 जो है, एंगल 2 और 5 ये हमने हटाना है। आपको पता है ये जो एंगल 2 है, एंगल 2 किसके बराबर, एंगल 3 के बराबर है, क्योंकि ये दिया गया है TQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल 1 तो ऐसे ही रखेंगे हम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बदले हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू। तो क्या हम करेंगे यहां पे, अगर आप देखेंगे ये जो एंगल 5 है, एंगल 5 हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल 6 माइनस एंगल 4, क्योंकि ये जो एंगल 5 है इन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो एंगल 5 होगा 180 में से हम 6 और 4 घटाएंगे, जितना बाकी बचेगा वो एंगल 5 होगा आपका, इसलिए हम एंगल 5 को यहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद है प्लस यहां पे एंगल 7। अब क्या करते हैं, ये जो एंगल 6 और एंगल 4 है, आप देखिए थोड़ा आप गौर कीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 6 और एंगल 5 बराबर है आपस में, तो
तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि टी आर इज द बाइसेक्टर, तो हम इसके बदले एंगल 5 लिखेंगे माइनस एंगल 4 प्लस एंगल 7। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ये दो एंगल्स इनको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो यहां पे क्या आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, क्योंकि ये माइनस यहां पे आएगा, और प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 प्लस एंगल 7। तो अब आप देखेंगे यहां पे हम क्या करेंगे, मैं दोनों साइड से इसको एंगल 7 ऐड कर रहा हूं। इस ये जो हमारे पास सिचुएशन है, दोनों साइड से मैं एंगल 7 ऐड कर रहा हूं। तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। यहां तो एक एंगल 7 है ही, तो मैं लिखूंगा यहां पे 2 टाइम्स एंगल 7। अगर आप यहां पे देखेंगे एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7, यानी इनका सम अगर आप देखेंगे एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7, ये 180 डिग्री के बराबर है। तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 प्लस 2 टाइम्स एंगल 7। ये 180 और 180 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 7। तो अगर आप लिख सकते हैं ये 2 आप यहां ला सकते हैं, तो इट इंप्लाइज 1/2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया है कि ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 का जो एंगल 7 है वो हाफ एंगल 1 के बराबर है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल की। तो आगे आप देखेंगे, आगे आप और एक चीज पढ़ेंगे यहां पे, दैट इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अगर आपको याद होगा क्लास 7th में आपने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के बारे में पहले से ही जानकारी हासिल की होगी, लेकिन फिर भी हम यहां पे रिवाइज कर रहे हैं, आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है। सिंपली अगर आप देखेंगे यहां पे एक ट्रायंगल है, तो किसी भी साइड को आप एक्सटेंड कीजिए, कहीं पर भी एक्सटेंड, वहां पे एक एंगल आपको फॉर्म हो रहा है, वो एंगल जो होता है उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल ड्रा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस साइड को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे तक, तो दिस इज ट्रायंगल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो वी प्रोड्यूसेस दिस वेरी लाइन सेगमेंट अप टू डी। नाउ अगर आपके पास ये वाला एंगल जिसको हम 1 नाम दे रहे हैं, और इसको हम 2 नाम दे रहे हैं, इसको हम 3 नाम दे रहे हैं, तो यहां पे जो है ये इसको हम फॉर एग्जांपल एंगल 4 नाम दे रहे हैं। ये वाला जो एंगल है दिस इज एक्सटीरियर एंगल, वी कॉल दिस एक्सटीरियर एंगल। ये वाला जो एंगल होता है, किसी भी लाइन सेगमेंट को जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे जो एंगल आपका नया मिलेगा विच इज लेस देन 180 डिग्री, वो आपको 180 से कम होगा। तो उस तरीके से एक ही लाइन, लेकिन याद रखिएगा एक ही लाइन को आप फॉरवर्ड कीजिएगा, वरना अगर यहां से आप फॉरवर्ड करेंगे तो यहां पे और एक एंगल बनेगा आपको। तो ये वाला वो वाला जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल, उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। यहां पर एक रिलेशन है, इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल जो है उनके दरमियान एक रिलेशन है। क्या है वो रिलेशन? उस रिलेशन को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल एंगल 4 है, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। यानी थ्योरम का कहना है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, और समटाइम्स वी कॉल दिस इज the sum of the exterior angle of a triangle is equal to the sum of the two opposite interior angles, हम ऐसा भी कहते हैं। तो अब चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, एक सिंपल सा एक प्रूफ हम लेते हैं। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? आपको पता है अभी हमने क्या सीखा है, इंटीरियर एंगल सम ऑफ ए ट्रायंगल, तो हमने सीखा है, वही चीज हम इस्तेमाल करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। आपको पता है यहां पे मैं सिंपल लिख रहा हूं एंगल 1 जो है प्लस एंगल 2 जो है प्लस एंगल 3, these are 3 interior angles of what? Of a triangle. So you know these are equal to what? 180 डिग्री, ये 180 डिग्री के बराबर है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, बिल्कुल आप मुझे बताइए इसके बराबर है। बिल्कुल आपने सही सोचा है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। तो इनका भी सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये भी 180 डिग्री के बराबर है, एंड सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी कैन से द लेफ्ट साइड ऑफ दीज टू इक्वलिटीज आर आल्सो इक्वल। सो वी कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे एंगल 3 दोनों साइड से इसको आप कैंसिल कीजिए, तो हमारे पास क्या बचा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equal to angle 4. So angle 1 plus angle 2, these are the two interior angles, opposite interior angles to the exterior angle 4. So we have proved the
एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ए ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया है, यह भी बिल्कुल आपके निसाब में है, आप इसको देखेंगे अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, कहां कहां पे इससे हमें फायदा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में एक प्रॉब्लम दी गई है, एक क्वेश्चन दिया गया है, वहां पे क्या लिखा है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल यहां पे ड्रा हुई है, जैसे ये मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं, ए पी यहां पे ट्रायंगल है और दिस इज क्यू, दिस इज आर, और इसको यहां पे टी तक फॉरवर्ड किया, प्रोड्यूस किया है उन्होंने, टी तक प्रोड्यूस, और यहां पे आप देखेंगे यहां पे मैं पी यहां लिख रहा हूं और इसको आगे इसने उन्होंने वहां पे प्रोड्यूस किया है। ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री के बराबर है, ये वाला जो एंगल है ये 110 डिग्री के बराबर है। वहां पे पूछ रहा है आप ये एंगल फाइंड कीजिए। आप दो तरीकों से इसको कर सकते हैं, दो तरीकों से इसको आप कर सकते हैं। अगर आप इसको आप फॉरवर्ड करेंगे, पहले इसको भी आप प्रोड्यूस करेंगे थोड़ा इस लाइन सेगमेंट को, यहां पर भी आपको एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। आपको याद होगा क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी